Hello everyone and welcome to the Brand Veda Talk Show. Good evening, Shriyo. I'm super excited. It's been long time. You're enjoying in Germany. Yes, definitely, sir. I'm pretty much enjoying in Germany, and yeah, बहुत दिनों के बाद. So before we start, everyone, please start your camera. So let us start your camera. Put your emojis. Let me see how you guys are feeling. We are very excited because I know that knowledge is power. You never know. आपको कब idea नहीं लगेगा, and a good speaker आते हैं, they'll talk, they'll share some important strategies, knowledge, and your life will change. This happens with many of us all the time, most of the time. Go ahead. It is taking that first step towards progress. It's all about that. Nice. So I think everyone, please start your camera. एक बार कैमरा सब लोग शुरुआत कर दीजिए. So yeah, moving further, we got to this Shriyo Gyatulazupati again, and he's an associate of customer transformations, and he has been growing a lot of digital marketing since a lot of time. So we probably did not even know about digital. I did not know about digital marketing, and he has been doing it from that time. And yeah, he has a lot of knowledge, and he wants to share. Again, I'm telling this because some people are not there probably. And being in PwC, it is an MNC. Definitely, there's a firm in Ahmedabad. There's a corporate office in Ahmedabad and SDI as well. So it is a big company, and he has secured his very well position over there. And to move further with, I'll first ask Shriyo, how are you, man? You're mute, man. You're mute. Yeah. First of all, thank you for having me. It's a big opportunity for me, as well as I would say it's an honor, because previously, as you know, I have been a student at Brand Veda, and after that only whatever I learned with Brand Veda, after that only I landed job at PwC Germany. So again, it's been an honor for me to present myself, and I wouldn't say share my expertise. I would say share my experiences here in Germany and overall in digital marketing space. Right. So thank you for having me. And how's the weather in Germany? Nowadays it's better, because it's summertime here in Germany, and we only get summer for 2.5 months. That's it. And then it becomes darker and darker. Well, over here in Ahmedabad, we only get winters for 2.5 months, and we all have to face through summers for the rest of our years. So, but yeah, exactly. Like back in India, we look forward to having winter. Here in Germany, we look forward to having summer. That's crazy. So yeah. Let's move further. Let's start with the webinar. And just a minute. There is some problem with my internet connection. I will just switch on my internet connection to cellular. Just a minute. Okay. So guys, if you have any query, if you have any questions, you can pen down. You can put them on chat. Now just make note of all the queries, so that we'll take it. These queries. Yes, sir, definitely. And as well as you can follow Shriyo on LinkedIn and ask any questions, or get his mentorship as well. Get Saurabh sir's mentorship as well. If there's any question that I can answer, if you feel like I can answer, please mention me as well, so it will be easier for you. So let us start camera. Meanwhile, he connects. Yes. Kritika, Dhrubil, Priyank, Jil, Yog, Bhargav, and take so I'll tell you that when I used to work in Mumbai, my boss always used to tell me every Saturday and Sunday, if you get an opportunity to learn, please learn, because I know that bringing some experts on board, it takes a lot of efforts and time. एक अच्छे लोगों को लाना, it takes a lot of efforts, and what we are expecting from this kind of session is that you should add value to yourself.
probably we are discussing, a lot of strategies and all. हम काफी strategies के बारे में बात करेंगे. Fine. Shreyog, yes. Yeah, I'm back. Yes, ma'am. Let's move further. Perfect. So Google Ads and Google Analytics, right? So what Yeah. have you got first? Perfect. So before starting, my question would be, how should be the session? It should be totally in English or should be combination of English Hindi? I would prefer combination of English Hindi because बहुत दिनों के बाद मुझे हिंदी बोलने को मिल रहा है, इसलिए Yeah, Let's even I type know some that in German chat. words. Let me see. Nice. I guess English Hindi is fine. Yeah. Perfect. 50-50. Yeah. That's good for me. So मैं मेरी screen share करता हूँ. मैंने एक सबके लिए एक छोटा presentation बनाया है, so that we will have experience sharing through the presentation then. Right. So is it visible? Yes, surely. Perfect. So before starting, let me introduce myself. As Naman said, I'm Shreyog Rajopadhyay, and I did my master's here in Germany in international business and engineering. There is a beautiful city called Heidelberg, and I did my master's there. After that, I worked for a company for a few months as in business development department, and then I came back to India due to pandemic, and there was those were pretty hectic days. But during that time, I started working as a consultant, digital marketing consultant, and that's pretty much the experience I had. Combining the experience which I had back here in Germany, I started working as self-employed consultant in digital marketing, and after that I joined Brand Veda in April last year in 2021, and then I got professionally trained by Saurabh sir, and after that I got again opportunity to come back to Germany when this things got settled, everything came back on track, and here I am now. So I started working with PwC in January this year, January 2022. I work as an associate in digital marketing, or I would say customer transformation, because that's what they call it, the customer transformation. And my focus area is Google marketing platform and Google Analytics. So today I'll be sharing my experience regarding Google Ads and Google Analytics, and how we can make it simple, the entire process, right from starting the ad campaign, and how can we analyze the campaign in Google Analytics. And not only in Google Analytics, or rather the older version of Google Analytics, I will introduce you to the newer version, which is called Google Analytics 4, which will be rolling out next year in 2023. So let's get started. So this should be the agenda for today. We'll discuss about, we'll have a glance at Google Ads and Analytics first. Then we'll discuss about the important settings, and I will walk you through a demo campaign and how should we set up, what are the important settings, because I'm pretty sure Saurabh sir must have taught you about how to set up Google Ads and Analytics, and I don't want to bore you guys again repeating the same things. So I will just walk you through the important settings of the campaigns. Later on, we will discuss about the entire Google Ads journey, and that will be a kind of a sneak peek into Google Marketing Platform also. Then we will discuss about the new things in Google Analytics. Later on, we'll discuss about the key features or key differences in UA, that is Universal Analytics, and Google Analytics 4. And then we will end up the session with by talking a little bit about future of digital marketing. Sure. So before starting, I have a few questions for you. First question is, what do you think? How many Google searches happen per day?
Any random guess? Any wild guess? I guess a lot would be a good number. Number? 1 billion. Okay, close to it. Any other number? 2.3 billion. Oh, specific. Nice. Yeah. Okay, so the answer is 8.5 billion searches per day. So it's pretty huge. Then I would like to know from you guys, what do you know about how many websites are there on Google आ रहा है Analytics? सर मेरे हैं सर Hello? I think there is background noise something. please Hello? continue sorry Yeah. So how many websites are there on Google Analytics? there are nearly 5.5 million web analytics. I just saw the statistic today. Okay, so again, it's 23 million Okay. websites and around 10,000 different brands right now using Google Analytics. So this data is from 2020-2021 fiscal year. Then the third question would be, what is the average media spent on Google Ads? So if we are, जैसे कि हम consider कर रहे हैं कि let's say there are 10,000 advertisers who use Google Ads, तो उन सब का मिला के एवरेज गूगल एड्स का स्पेंड कितना होगा? You can talk in any currency, rupees, dollars, euros, anything. More than 2-3 million I guess. How much? More than 2-3 millions. It's about $120,000 Per, like per person. each advertiser per year. Yes. It's 120,000 average and $120,000. Again, this media spend ये increase हुआ है 2020 में due to pandemic because हम normally जैसे अगर कोई manufacturing firm है जो conferences या trade fairs में जाती है तो उन ड्यू टू पैंडेमिक ये अपॉर्चुनिटी उनके पास नहीं थी, तो वो भी जो इंडस्ट्री है विच वाज काइंड ऑफ अनटैप्ड और जो गूगल एड्स से बहुत दूर थी पहले प्रीवियस बिफोर द पैंडेमिक, वो भी इंक्लूड हुए हैं अभी, वो भी दे आल्सो रन गूगल एड्स और मे बी ये स्पेंड भी इंक्रीज हुआ है. एंड द लास्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाट इज गूगल्स मार्केट शेयर इन द डिजिटल एड्स इंडस्ट्री. सो अगर हम डिफरेंट डिजिटल एड्स प्लेटफॉर्म अगर कंसिडर करेंगे जैसे कि गूगल इटसेल्फ, देन वहाँ पे अमेजोन है, फेसबुक, ट्विटर, ये सब जो एड्स प्लेटफॉर्म है या फिर मीडिया है, उन सब में गूगल का मार्केट शेयर कितना रहेगा इन परसेंटेजेस? I guess 60-80%. I guess 70-80%. More than 50. Well, it's not that much. It's 28.3%, but still it's considerable. Yeah, because might be ये इसका रीजन एक ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पे एड्स लोग ज्यादा रन करते हैं कंपेयर टू गूगल एड्स, और ये नॉट ओनली गूगल सर्च एड्स बट जो गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क है ये कंबाइनली उसका मार्केट शेयर है 28.3%. So I got a cool infographics also for you, and here you can see the total revenue of Google is around 182 billion. So it's of Alphabet. So yes. Google के जो parent company है उसका total revenue है 182 billion. So again a question is, out of 182 billion, Google ads और जो ad platform है Google का, जो YouTube पे ads run करते हैं या फिर जो उसका पार्टनर नेटवर्क है, उसमें सब में मिला के गूगल का रेवेन्यू कितना रहेगा जस्ट ऑन एड्स आउट ऑफ 182 बिलियन? Okay. 182, right? Yeah. Billions. So nearby 130 billion, 130, 135 billion. Good guess. So it's around 170 billion. So as you can see, Google is
no more a tech company now, it's a media company. So Google का जो बहुत बड़ा revenue share है वो ads के through ही आता है, and here we can see there is a pretty much good potential to run. Why people run Google Ads? This is the reason, because उनको एक reach मिल जाता है, और as you can see 8.5 billion people अगर 8.5 billion searches अगर हो रहे हैं, तो उतना potential है कि उतने लोगों के पास हम through Google Ads पहुंच सकते हैं. That is why there is a huge potential. Now अगर इतना बड़ा potential है, तो हमें ये देखना होगा कि Google Ads रन कैसे करने हैं, और उसमें से important settings क्या है, क्योंकि Google Ad का जो platform है वो it's a pretty straightforward. एड सेटअप करना इजी है, लेकिन उसमें बहुत सारे हिडन सेटिंग्स है, और वही हिडन सेटिंग्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं. सो आई विल गो बाय फर्स्ट आई विल गो थ्रू वन बाय वन सेटिंग, एंड देन आई विल वॉक यू थ्रू अ डेमो कैंपेन. सो फर्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, और ये बहुत सारे लोग भूल भी जाते हैं सेटअप करना, कन्वर्जन ट्रैकिंग. सो in layman's term, what do you mean by conversion tracking? So conversion tracking is हम Google को या कोई भी एड्स प्लेटफॉर्म को ये बताते हैं कि कोई अगर मेरे वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे अगर कोई पर्टिकुलर एक्शन कर रहा है, which is that may be filling up a form or making us purchasing some item, then we are telling Google that count this as a conversion. So and this is important, क्योंकि इस पे ही हमारा जो ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI, वो इस पे डिपेंड होने वाला है. क्योंकि अगर हमने कंपेयर टू मार्केटिंग स्पेंड, अगर हमारा रेवेन्यू कम है, तो हम वो ट्रैक कैसे कर पाएंगे? दिस इज द वे, दिस इज एक्चुअली वन वे ऑफ ट्रैकिंग इफ वी आर मेकिंग अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेट अप कन्वर्जन ट्रैकिंग. Then there is another setting in Google Ads. I will walk you through one by one. I will just talk about these settings first. Search and display, then ad scheduling, location targeting, bidding strategy, keyword theme ad group, and last but not least multiple ad types. So हम अब एक डेमो कैंपेन के थ्रू ये सब चीजें समझ लेते हैं. So let me just switch back to a campaign. Okay, so can you see my screen? No, The campaign? I guess I think I need to share the I need to stop and start Yes, sharing yes. the another one, I think. Just a moment. Now? Can you see the screen? Yes. Okay, perfect. So अभी जो पहला पॉइंट है कन्वर्जन ट्रैकिंग, तो हमें वो ऑब्वियसली पहले कैंपेन सेट करने से पहले हम ये देख नहीं सकते कि अगर कन्वर्जन ट्रैकिंग इफ इट इज एट प्लेस और नॉट. बट अगर प्रीवियसली कोई कैंपेन रन हो रहा है और हमें अगर चेक करना है कि इफ देयर इज एनी कन्वर्जन ट्रैकिंग रनिंग और नॉट, तो हम सिंपली वो चेक कर सकते हैं अंडर टूल्स एंड सेटिंग्स, measurement, and under conversions we can see if there is any conversion tracking setup or not. I will walk you through this part later on. So let's start a campaign. Let's start setting up a campaign. So ये actually Google Ads का नया interface है. There are two more new ad types are now, which is local store visits and local promotions. ये previous version में नहीं था, ये अभी ये गूगल ने न्यूली ऐड किया है, और ये भी क्रिएट कैंपेन विदाउट एड गोल्स गाइडेंस. सो हमारा अगर कैंपेन गोल रहेगा, सो लेट्स से इट्स लीड्स, एंड आई वांट टू हैव फॉर्म सबमिशंस. कंटिन्यू. सर्च एड्स. Sorry for that. Okay. Now जो बिडिंग का पार्ट है उसमें अगर हम if we are setting a campaign for the first time,
then I wouldn't recommend that. There are two kinds of biddings. One is automated bidding and second one is manual bidding. So अगर हम पहली बार कैंपेन सेट कर रहे हैं तो I would suggest कि we should go with manual bidding, क्योंकि हमें ये जो ऑटोमेटिक बिडिंग है उसमें गूगल का मशीन लर्निंग और एआई वर्क करता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम हमारा जो कैंपेन बजट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम स्पेंड कर जाते हैं उसमें. तो अगर हमें ये टेस्ट करना है कि वेदर आवर कैंपेन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट, आई वुड सजेस्ट यू शुड गो विथ you should go with manual bidding. Then here, as I said, search and display. Now ये गूगल का एक छोटी सी ट्रिक है हमें ट्रिक करने के लिए कि उनका सर्च और डिस्प्ले नेटवर्क दोनों यूज करना चाहिए. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाइल सेटिंग अप अ सर्च एड कैंपेन वी शुडंट यूज देयर डिस्प्ले नेटवर्क, क्योंकि उसमें जो हमारे रिपोर्ट्स जो आते हैं कैंपेन परफॉर्मेंस के रिपोर्ट्स, उसमें डिस्प्ले नेटवर्क के भी इंप्रेशंस दिख जाते हैं. तो नॉर्मली ये ऐसा तो बाद में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि अरे वी आर गेटिंग दिस मेनी इंप्रेशंस लाइक 100,000 इंप्रेशंस एंड compared to those impressions we are not getting enough clicks. It's because our ads are running on search and display network simultaneously. So if you are setting up a search network campaign, then just untick this. We are not gonna run our ads on search networks. हम अगर चाहे तो include search partners को भी untick कर सकते हैं. अगर हम untick करेंगे तो सिर्फ गूगल का itself जो सर्च नेटवर्क है उस पे ही कैंपेन रन होंगे, उसके पार्टनर सर्च नेटवर्क्स पे नहीं होंगे. So again, if you are running campaign for the first time, then I would suggest using this setting. Then location targeting. अगर आपका क्लाइंट अगर कोई लोकल बिजनेस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोकेशन टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेस व्हिच उसका प्रेजेंस सिर्फ गुजरात में ही है, तो आई वुडंट रन एड्स फॉर एंटायर इंडिया और होल कंट्री. सो यहाँ पे हमें ये इंश्योर करना है कि मेरी एड सिर्फ जो मैंने डिफाइंड टेरिटरी है उसमें ही रन हो. तो यहाँ पे हम इधर पूरी कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एक एंटर अनदर लोकेशन करके इंडिया की स्पेसिफिक स्टेट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाद में तो हमारी एड्स वहां पे उसी रीजन में या उसी स्टेट्स में रन होना शुरू हो जाएंगे. देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट सेटिंग that we may need to consider, that is हमें जो लोकेशन ऑप्शंस में ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, प्रेजेंस पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन. नॉर्मली जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंस और इंटरेस्ट वो सिलेक्टेड रहता है. ये हमें सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल देयर इज अ बिजनेस इन गुजरात and I am living in Maharashtra or even in Karnataka and I am searching for that business. So I showed my interest in that location, that in Gujarat, but I am currently not in Gujarat. So if I'm seeing those ads, तो हमारे लिए again it's a budget constraint का problem बन सकता है. इसलिए I would suggest कि हमें जो location targeting है वो presence में ही रखना है. So it means people who are actually in Gujarat or have been to Gujarat will able to see our ads only. Right. Language settings as usual English रख सकते हैं. अगर कोई local language में अगर कोई ad बनानी है, जैसे मराठी हुआ, गुजराती या फिर some other Indian languages, then we can add those languages here as well. Then about ad groups. Ad groups का normally जो पहली बार कैंपेन सेट कर रहे हैं उनके लिए एक टिपिकल मिस्टेक उनसे हो जाती है कि ये एड ग्रुप बनाते हुए दे डोंट कंसीडर कीवर्ड थीमिंग. फॉर एग्जांपल इफ आई एम रनिंग अ बेकरी बिजनेस, तो अगर मेरे पास मैं अगर मेरे केक के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं, तो जो मैं एड ग्रुप बनाऊंगा उसमें
मैं एक थीम रखूंगा कि फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द फ्लेवर ऑफ केक, और इफ द केक इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, उसमें समटाइम्स people back in India people don't like eating cakes जिसमें अंडा हो या एग हो, तो उसके हिसाब से मैं कीवर्ड का थीम करके एक एड ग्रुप क्रिएट करूंगा। अगर हमारे पास समटाइम्स ये भी कर सकते हैं कि एक एड ग्रुप में एक ही कीवर्ड होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक एड ग्रुप में सारे कीवर्ड्स डालेंगे तो उसमें से कीवर्ड डुप्लीकेशन हो सकता है, और समटाइम्स हमें ऐसे कीवर्ड्स के लिए भी इंप्रेशन मिलता है जो एक्चुअली हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट भी नहीं करते, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज मल्टीपल एड टाइप्स। तो अगर मैं कोई सर्च नेटवर्क कैंपेन रन कर रहा हूं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास मल्टीपल एड टाइप्स होने चाहिए। जैसे कि मैंने रिस्पॉन्सिव सर्च एड क्रिएट किए हैं एक एड ग्रुप में, तो रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स वो एक ही एड रन नहीं करनी है, क्योंकि मुझे टेस्ट भी करना है कि एड का कौन सा वर्जन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो अगर मेरे पास 2 या नॉर्मली गूगल रेकमेंड करता है कि आपके पास एक एड ग्रुप में 3 एड्स होने चाहिए, सो दैट गूगल का मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इस तरह से डिजाइन हुआ है कि जो एड बेटर परफॉर्म कर रहा है वही एड लोगों को दिखता है। तो बाद में मैं ये भी डिसाइड कर सकता हूँ कि अगर दूसरे या तीसरे ऐड में कोई अगर कीवर्ड प्रॉपर्ली वर्क नहीं हो रहा या फिर कोई इंप्रेशंस कुछ कीवर्ड्स इंप्रेशन नहीं दे रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स उठा के मैं एक और ऐड ग्रुप क्रिएट करके एक और ऐड ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ फॉर दोस कीवर्ड्स ओनली। सो ये गूगल भी रेकमेंड करता है कि एक ऐड ग्रुप में एटलीस्ट 3 एड्स होने चाहिए। 2 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें कंपेयर करना है कि कौन से एड्स प्रॉपर्ली रन हो रहे हैं, कौन सा वर्जन ऑफ एड प्रॉपर्ली रन हो रहा है, और उसी को हम पुश फॉरवर्ड करेंगे। और रिमेनिंग एड को हम जो एड प्रॉपर्ली रन नहीं हो रहा है उसको थोड़ा ऑप्टिमाइज करेंगे, या फिर उसके जो कीवर्ड्स है अगेन एज आई सेड कीवर्ड थीमिंग करके उसमें से थोड़े कीवर्ड्स बाहर निकालेंगे, तीसरा एड ग्रुप क्रिएट करेंगे और उसमें से और 1-2 एड्स रन करेंगे। तो ये पूरा ऑप्टिमाइजेशन का खेल है। और ये once we start running the campaign and start seeing the performance, after that we can decide which ads we should run and which shouldn't. So conversion tracking, search and display, ad scheduling, location targeting, bidding strategy, keyword theme ad group और मल्टीपल एड टाइप्स। तो ये हो गया कैंपेन सेटअप। अब कैंपेन सेटअप करने के बाद इट्स डन, राइट? कैंपेन इज अप एंड रनिंग and we don't have to look for anything, right? So, or is there anything that I have to do? Can anybody tell me? Any extensions if you can use? Definitely extensions, exactly. और अब ये मतलब ऐसे कंसिडर करो कि ऑलरेडी आपका कैंपेन अप एंड रनिंग है, तो अब मुझे क्या करना है? What's next? What's where your target is, where your audience is. Reports about that. Sorry? Reports about the targeting, the audience, where the ads are running, you know, the metrics, measurements of the ads. Exactly. So हमें पर्टिकुलर KPIs है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, उन्हें ट्रैक करना है। तो ये कैंपेन सेटअप का पार्ट हो गया। अब हमें मेजरमेंट की तरफ जाना है। तो मेजरमेंट में कुछ 5 या 6 ऐसे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स है जिन्हें हमें ट्रैक करना ही है। फर्स्ट है कॉस्ट। ये डेफिनेटली हमें जब एड रन होना शुरू हो जाता है, विद इन अ वीक आई थिंक we start getting results about how much spend we have for each ad. So ये cost, cost का जो metric है वो हमें directly ads के dashboard में दिख जाता है। बाद में conversions का भी as I said, ये अगर conversion tracking set है तो तभी हम conversions देख सकते हैं obviously, अगर नहीं तो नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए conversion देखना जरूरी है। अब cost और conversion का क्या use क्या है, ये 2 metric हम क्यों track कर रहे हैं? क्योंकि हमें कॉस्ट पर एक्शन चेक करना है कि मैंने 100 रुपए स्पेंड किए और मुझे 10 लोगों का लीड फॉर्म फिलअप मिल गया, तो मेरा कॉस्ट पर एक्शन 10 रुपए हो गया। सो ईच, तो ये कैलकुलेट करने के लिए मुझे
कॉस्ट पर एक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन का मेट्रिक चाहिए। ये कॉस्ट पर एक्शन ऑब्वियसली हम देयर इज अनदर फील्ड व्हिच इज कॉल्ड कैलकुलेटेड columns where we can set up okay we can just tell Google that okay just division कर दो कॉस्ट और कन्वर्जन का, मुझे कॉस्ट पर एक्शन दिखा दो। तो ये भी हम डैशबोर्ड में देख सकते हैं, या फिर अगर हमारा गूगल एड्स और एनालिटिक्स कनेक्टेड है तो हम एनालिटिक्स में भी एक कस्टम मेट्रिक बना सकते हैं कि मुझे कॉस्ट पर एक्शन कैलकुलेट करना है। बाद में जो नेक्स्ट मैट्रिक है वो हमें चेक करना है कि क्लिक थ्रू रेट कितना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर मुझे इंप्रेशंस मिल रहे हैं लेकिन पीपल आर नॉट क्लिकिंग ऑन माय एड, तो हम देख सकते हैं कि ओके एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स मुझे इंप्रेशंस मिल रहे हैं लेकिन पीपल आर नॉट क्लिकिंग माय एड, इट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द एड कॉपी इटसेल्फ। तो हम वो चेक कर सकते हैं कि एड कॉपी में कोई प्रॉब्लम है क्या, तो हम वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, इसलिए क्लिक थ्रू रेट भी हमें देखना है। एंड लास्ट कॉस्ट पर क्लिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ही हम हमारा नेक्स्ट जो कैंपेन का बजट है वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर लास्ट कैंपेन में एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए लास्ट कैंपेन में हमने अगर लेट्स से 10 रुपीज कॉस्ट पर क्लिक दिया है, तो नेक्स्ट कैंपेन के लिए वो एक बेंचमार्क बन सकता है कि ओके ठीक है, अगर मैं फूड इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूं तो कॉस्ट पर क्लिक मेरा 10 रुपए रहेगा, क्योंकि प्रीवियस कैंपेन का मेरा कॉस्ट पर क्लिक ऑलमोस्ट सेम ही रहा है, तो मैं 10 या 15 रुपीज कंसिडर करके मेरा एड का बजट बनाऊंगा। तो अब ये जो चीजें हैं, जो जैसे कि कैंपेन सेटअप हो गया और मेजरमेंट हो गया, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो उसे बोलते हैं गूगल एड्स ऑप्टिमाइजेशन। एंड दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इन पे पर क्लिक एडवर्टाइजमेंट। So people who are working in PPC ads segment, doesn't matter if they are working specifically with Google ads or maybe some other ads platform also like social media, Facebook और Twitter पे भी ad चला रहे हैं। सभी का जो बेस है या फिर सभी का जो फंडामेंटल्स है वो यही है कि हमें एड्स ऑप्टिमाइजेशन करना है, मतलब यही चीजों को ऑप्टिमाइज करना है। फर्स्ट कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन एंड देन मेजरमेंट्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे देन वी से ओके वी हैव ऑप्टिमाइज्ड आवर गूगल एड्स कैंपेन। सो हम ये देख सकते हैं कि गूगल एड्स जो जब हम कैंपेन सेटअप करते हैं इट्स नॉट वन एंड ओनली काइंड ऑफ वर्क। सो जैसे कि मैंने कैंपेन सेटअप कर दिया, मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, अब मेरा काम हो गया, मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें हर बार ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है उसमें as long as the campaign is up and running. So again Google Ads optimization is kind of a recurring process. Right. So I have a Yeah. question. Yeah, please. While optimizing our Google Ads campaign, our main optimization focus is on improving the KPIs, right? Right. So that's what, and it is constant all the way. जब तक भी कैंपेन रनिंग है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहेगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो इसमें जो हमारे क्लाइंट रहते हैं उनका भी एक व्यू रहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक मेट्रिक कंसिडर करें जैसे कि कॉस्ट पर एक्शन, अगर कॉस्ट पर एक्शन उनका एक प्री डिफाइंड रहेगा कि फॉर एग्जांपल आई वांट टू स्पेंड 20 रुपीज पर एक्शन, अगर वो बढ़ रहा है तो हमें चेक करना है कि वेदर वी आर गेटिंग इनफ कन्वर्जन्स और नॉट। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन क्लाइंट्स बजट और क्लाइंट्स प्रायोरिटी आल्सो। सो इफ ही सेइंग ओके मैं 100 रुपीज स्पेंड करने के लिए भी तैयार हूं लेकिन मुझे कन्वर्जन चाहिए ही चाहिए। Are there any other questions? In fancy terms, this is called as, I guess, performance marketing. Yes, exactly. Performance marketing. Yeah. So are there any other questions? Anything related to campaign setup or measurements? Yeah, let's move forward. Chat में लिख देना जो भी questions वगैरह। Exactly, yeah. Chat में लिख देना। So let's move forward. तो हम
अभी हम देखेंगे कि गूगल एड्स की नॉर्मल जर्नी कैसे रहती है। नॉट ओनली गूगल एड्स, एनी एड कैंपेन की एक नॉर्मल जर्नी रहती है, क्रिएट कैंपेन, टैग कैंपेन एंड ट्रैक कैंपेन। सो और ये क्रिएट कैंपेन का जो पार्ट है, जो मैंने अभी डेमो में दिखाया, वही क्रिएट कैंपेन नहीं है। कैंपेन क्रिएशन उसके पहले भी शुरू होता है। जैसे कि हमें हमारा टारगेट सेगमेंट डिफाइन करना पड़ता है कि वेदर वी आर टारगेटिंग अ स्पेसिफिक एज ग्रुप और स्पेसिफिक डेमोग्राफिक, और उसके बाद हमें ये भी रिसर्च करना पड़ता है कि उनका इंटेंशन क्या है सर्च के बिहाइंड। वो अगर कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डाल रहे हैं तो व्हाई इज ही सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, और उसके हिसाब से हमें कीवर्ड कॉपी भी ऐड कॉपी भी बनानी पड़ती है। तो कैंपेन क्रिएशन इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग इन Google Ads dashboard and creating campaign there. The process starts at least 1 or 2 week prior to that. So अगर मैं Google Ads के डैशबोर्ड में जाके कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ, तो पहले मुझे ये जो पहला रिसर्च है पूरा, जैसे कि कंपटीशन एनालिसिस हो गया, कीवर्ड्स एनालिसिस हो गया, ये पूरा करके मुझे रेडी होके ही कैंपेन क्रिएट करने के लिए जाना है। नेक्स्ट, टैग कैंपेन, एज आई सेड, कन्वर्जन टैग ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट है, तो हमें सिर्फ कन्वर्जन टैग लेके वो हमें इधर वी कैन डायरेक्टली पोस्ट इट या गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास लैंडिंग पेज है तो लैंडिंग पेज के कोड में जाके फिजिकली भी कर सकते हैं। और ट्रैक कैंपेन मींस व्हाटएवर मेजरमेंट्स वी आर करंटली गेटिंग, वो हमें सिर्फ ट्रैक करना है और अकॉर्डिंगली हमें ऑप्टिमाइज करना है। तो ये बेटर रहता है अगर हमारा गूगल एड्स का अकाउंट गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड है, तो जो एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स स्पेसिफिक मैट्रिक्स है, जैसे कि पेज व्यूज कितने हैं, बाउंस रेट कितना है, ये जो मैट्रिक है वो हमें गूगल एड्स के डैशबोर्ड में नहीं दिखते। इसीलिए हमें गूगल एड्स और एनालिटिक्स कनेक्ट करना पड़ता है। इट्स एडवाइजेबल दैट यू शुड कनेक्ट गूगल एड्स एंड एनालिटिक्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिमाइजेशन, अगर कोई यूजर हमारे लैंडिंग पेज पे आके भी कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो वो जो डेटा है, जैसे कि वो बाउंस हो रहा है, तो वो डेटा हमें गूगल एड्स के डैशबोर्ड पे नहीं दिखेगा, क्योंकि वहां पे तो सीटीआर दिख रहा है, मुझे 5% सीटीआर दिख रहा है, लेकिन कन्वर्जन नहीं दिख रहा। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वंस कस्टमर लैंड्स ऑन और लैंडिंग पेज देयर इज सम प्रॉब्लम। तो वो प्रॉब्लम हमें एनालाइज करने के लिए एड्स, गूगल एड्स का एनालिटिक्स का अकाउंट अगर कनेक्टेड है, तो वहां पे हम देख सकते हैं। There are some other tools also which goes under again conversion rate optimization. Like there is a tool called Hotjar, जिसमें हम देख सकते हैं कि once a user lands on our landing page, what exactly he does. So उसने scroll कितना किया, या फिर उसने अगर कोई वीडियो है तो वीडियो प्ले किया या नहीं। Sorry? Heat map analysis. Exactly. तो ये recordings वगैरह हम देख सकते हैं। तो this comes under tracking campaign. अब ये करने के लिए क्रिएट कैंपेन, टैग कैंपेन एंड ट्रैक कैंपेन, हमारे पास 3 डिफरेंट टूल्स है कैंपेन क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल एड्स, देन कैंपेन क्रिएट करने के लिए गूगल एड्स है हमारे पास। कैंपेन टैगिंग के लिए हमारे पास गूगल टैग मैनेजर है। there are some other tools also like Adobe Analytics, and they also have their own tag manager, but as far as Google Ads is concerned, then we have Google Tag Manager, and for tracking purposes we have Google Analytics and some other conversion rate optimization tools like Hotjar, etc. लेकिन when it comes to bigger campaigns, like मुझे एक कैंपेन रन करना है not only on Google but on Microsoft or Bing Ads or Yahoo Ads, तो हमें हर बार एक प्लेटफॉर्म से जंप करके दूसरे प्लेटफॉर्म में जाना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए गूगल ने अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको बोलते हैं गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। तो गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्या है? इट्स अ क्लब और द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज टूल्स व्हिच वी यूज फॉर क्रिएटिंग कैंपेन, टैगिंग कैंपेन एंड ट्रैकिंग कैंपेन। सो उसमें हम सर्च एंड डिस्प्ले नेटवर्क एड्स क्रिएट कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर गूगल बट फॉर other search networks also, like Bing or Yahoo also. So we don't have to juggle between different platforms. So मुझे सर्च कैंपेन पहले गूगल पे क्रिएट किया, यहाँ से उठ के मैं Bing पे गया, वहां पे मैंने सेम कीवर्ड, सेम एड कॉपी यूज करके वहां पे कैंपेन क्रिएट किया। ये करने की जरूरत नहीं है। गूगल itself has a one stop shop where you can get all these settings together, and there is campaign manager also
which comes under again Google Marketing Platform, जिसमें हम ये पूरे कैंपेन्स को हम एक जगह बैठ के ये तीनों चीजें कर सकते हैं, क्रिएट कैंपेन, टैग कैंपेन एंड ट्रैक कैंपेन. So this is what Google Marketing Platform is. Yes. So are there any questions? Meet had a question how to calculate CPA. Sorry, how to calculate? CPA, cost per action. Cost per action is just the ratio of cost and conversions. So मैंने अगर कुछ रुपए स्पेंड किए हैं तो उसमें से मुझे कन्वर्जन्स कितने मिले. So it's just ratio of cost and conversion. I have one question that if we tag or if we get the data on Google Analytics, right? And from the Google Ads, so does it collect the website analytics as well, which is growing organically? नहीं, अगर हमने Google Ads और Analytics का अकाउंट क्रिएट किया है तो Google Analytics का जो कन्वर्जन सेक्शन है तो उस कन्वर्जन सेक्शन में एक नया टैब क्रिएट हो जाता है फॉर Google Ads और उसी में हम ये सब रिपोर्ट देखते हैं. Yes, specifically for Google Ads only. Yes. But we can see Google Analytics specific metrics also. So previously, जो for example as I said, जो bounce rate है या फिर sessions कितने हुए हैं, ये अगर लैंडिंग पेज और लैंडिंग और एग्जिट पेज कौन सा है ये अगर हमें देखना है, क्योंकि अगर मल्टीपल लैंडिंग पेजेस है तो अगर हमें ये चेक करना है कि क्योंकि एक फनल में हो सकता है कि मेरे पास 2-3 लैंडिंग पेजेस है और यूजर फर्स्ट लैंडिंग पेज पे लैंड हो जाता है और मे बी सेकंड लैंडिंग पेज से वो एग्जिट भी हो जाता है. तो ये अगर हमें चेक करना है तो हम वो एनालिटिक्स में भी चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग पेज कौन सा था और एग्जिट पेज कौन सा था. तो ये अगर हमने गूगल एड्स और एनालिटिक्स अगर कनेक्ट किया है तभी हम देख सकते हैं, अदरवाइज ये डेटा एनीवेज हमें एड्स के डैशबोर्ड में नहीं दिखने वाला. So just for my clarity, tagging for conversion is different, tagging the whole campaign is again different, or is it the same? It's the same because most of the times हम जो कैंपेन में टैग करते हैं वो मोस्टली कन्वर्जन ही करते हैं और कुछ नहीं. Right. हेलो या मैं ये पूछ रहा था कि अगर हम नया कोई कैंपेन रन करें तो गूगल पूछता है ना सेट अप योर टारगेट सीपीए, तो वो हम कितना रखना चाहिए, मतलब हम कैसे डिसाइड करें कि 20 रुपीज रखे, 25 रखे, 15 रखे? ये अगेन डिपेंड करता है अपने क्लाइंट के ऊपर कि उसे अगर एक कन्वर्जन के लिए कितना मनी स्पेंड करना है. अगर वो बोलता है कि लेट्स से 100 रुपीज आई कैन स्पेंड, देन यू कैन सेट अप some 100 or 120 rupees CPA. So it again depends on client's needs. Okay. Let's move forward. Yeah. So अब हमने देखा कि एनालिटिक्स गूगल एड्स में कैंपेन सेटअप कैसे करते हैं और मेजरमेंट्स क्या क्या है, और लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म आल्सो. Now let's move forward to the new avatar of Google Analytics. It's called Google Analytics 4, and let's discuss what is new with Google Analytics 4. So first, new logic of data collection. So how many of you have used Google Analytics before? I have. If I may ask. These are all new students apparently, so some new. Okay. Okay. They don't So have a clear idea of what Google Analytics and how it works, I guess. Okay. So जो अभी Google Analytics का वर्जन है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स, और उसमें जो डेटा कलेक्शन का लॉजिक है वो है कि जब मैं अगर कोई वेबसाइट विजिट करता हूँ जिसपे Google Analytics का टैग लगा हुआ है तो Google Analytics will count it, जो मेरी विजिट है it will count it as a hit to तो ये जो विजिट है ये एज हिट और एज अ पेज व्यू हिट कैलकुलेट हो जाती है अभी जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है इसमें. तो जो लोएस्ट लेवल ग्रैन्युलरिटी जिसे बोलते हैं कि डेटा की अगर लोएस्ट लेवल इसके नीचे में नहीं जा सकता, इसके नीचे का डेटा मुझे नहीं मिल सकता, तो ये जो लोएस्ट लेवल ग्रैन्युलरिटी है अभी जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में वो है पेज व्यू और पेज व्यू हिट. लेकिन
जो नया गूगल एनालिटिक्स है, गूगल एनालिटिक्स 4, उसमें ये पेज व्यू एज अ हिट कैलकुलेट नहीं होता, ये पेज व्यू एज एन इवेंट कैलकुलेट होता है। तो उसके साथ जैसे कि हम अगर यूनिवर्सल एनालिटिक्स में अगर कोई इवेंट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ उसके पैरामीटर्स भी आते हैं, जैसे कि इवेंट नेम आ गया, या फिर इवेंट का event name or some other parameters also which are associated with that event. So Google Analytics 4 क्या करता है, जब मैं कोई वेबसाइट अगर विजिट करता हूं तो वो विजिट एज एन इवेंट कैलकुलेट करता है, नॉट एज अ हिट। तो ये थोड़ा लॉजिक में थोड़ा चेंज है उसके। अब हमें यहाँ पे पेज व्यूज, तो डज दैट मीन कि हमें पेज व्यूज वहां पे दिखेंगे? नहीं, वहां पे दिखेंगे, लेकिन अ सिंगल पेज व्यू वहां पे नहीं दिखेगा। इट विल बी काइंड ऑफ अ कोहोर्ट, so group of people will be considered, and that analysis I will be able to see in Google Analytics 4, not a single user has visited my website. So this is a new logic which we are getting in Google Analytics 4. Second, I guess yeah. this event setup is also in Facebook marketing as well, कि उसमें भी सेटअप करना होता है इवेंट वगैरह जो भी होता है, जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग में जब जाते हैं अपने, there is a setup of events after which we can set the conversion. मतलब मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तब उसको इवेंट कैलकुलेट करता है, इवेंट सेटअप फेसबुक का इवेंट सेटअप टूल, एंड आफ्टर दैट if I go to that URL, particularly thank you page का URL पे गया तो it tracks that as well. तो फिर वो पूरा event setup Facebook में भी is already present. Is it somewhere similar to that? yes, ये जो इवेंट सेटअप है ये अभी यूनिवर्सल एनालिटिक्स में भी है, लेकिन जो मतलब जो ओल्डर वर्जन ऑफ एनालिटिक्स है उसमें भी इवेंट सेटअप है, लेकिन वो हमें मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है। गूगल एनालिटिक्स 4 में जो बेसिक इवेंट्स है, जैसे कि पेज व्यू हो गया, या फिर स्क्रॉल हो गया, या फिर वीडियो व्यू हो गया, ये जो इवेंट्स है ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स में प्रीवियसली हमें मैन्युअली सेटअप करने पड़ते थे। अब ये गूगल एनालिटिक्स 4 में ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगे। सो जब मैं गूगल एनालिटिक्स 4 का टैग मेरे वेबसाइट पे इंस्टॉल कर देता हूँ तो मेरे अगर वेबसाइट पे कोई अगर वीडियो है तो वो वीडियो का जो व्यू है वो ऑटोमेटिकली ट्रैक होना शुरू हो जाएगा, जो प्रीवियसली यूनिवर्सल एनालिटिक्स में नहीं होता। या फिर स्क्रॉल डेप्थ के लिए मुझे एक इवेंट क्रिएट करना पड़ता था, या फिर गोल क्रिएट करना पड़ता था कि मेरी वेबसाइट 20% स्क्रॉल हो गई, 50% स्क्रॉल हो गई, तो उसके लिए ये भी चीज आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स गूगल एनालिटिक्स 4 में ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगी। तो the second new thing about it is the new interface. I will show everything. ये भी डेमो अकाउंट में जो गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का डेमो अकाउंट है उसमें ये सब चीजें दिखाऊंगा मैं। न्यू इंटरफेस है। प्रीवियसली जो गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस था उसमें सिर्फ एनालिटिक्स का ही पार्ट रहता था या फिर रिपोर्ट्स ही दिखते थे, लेकिन अब हम रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स 4 में। तो इंटरफेस में भी चेंज है। बाद में रिपोर्ट कस्टमाइजेशन। हमें जो रिपोर्ट्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स में अभी मिलते हैं वो रेडीमेड मिलते हैं, जैसे कि सेशन रिपोर्ट हो गया या फिर डेमोग्राफिक रिपोर्ट हो गया, ये हमें रेडीमेड मिल जाता है। और उसमें अभी गूगल एनालिटिक्स 4 में भी मिल जाता है रेडीमेड, लेकिन उसमें कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। अब ये जो फीचर है वो प्रीवियसली यूनिवर्सल एनालिटिक्स में पॉसिबल नहीं था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अपडेटेड प्राइवेसी सेटिंग्स। गूगल एनालिटिक्स जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है वो कंसिडरिंग द प्राइवेसी सेटिंग इतना प्राइवेट नहीं है अभी, इतना सिक्योर नहीं है, क्योंकि इट वर्क्स ऑन समथिंग कॉल्ड थर्ड पार्टी कुकीज। सो जब मैं इंस्टॉल करता हूँ गूगल एनालिटिक्स मेरे वेबसाइट पे, तो वो एक कुकी ड्रॉप करता है। एज यू नो द लॉजिक, वो कुकी ड्रॉप करता है और एवरी टाइम समवन विजिट्स माय वेबसाइट दैट कुकी और द जावास्क्रिप्ट कोड sends a page view hit in analytics। तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में ये थर्ड पार्टी कुकीज पे डिपेंड करता था, अब ये गूगल एनालिटिक्स 4 में फर्स्ट पार्टी कुकीज पे डिपेंड करता है। आई वोंट गो इन डिटेल्स बिकॉज वो बहुत सारे लीगल टर्म्स भी है उसमें, तो आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस विद दोस लीगल टर्म्स। तो सिर्फ इतना याद रखना या ध्यान में रखना कि अब प्राइवेसी सेटिंग्स गूगल एनालिटिक्स 4 की ज्यादा अपडेटेड है और गूगल एनालिटिक्स 4 इज मोर प्राइवेसी कंसर्न या फिर मोर सिक्योर है। तो हम अब ये जो चीजें हैं गूगल एनालिटिक्स 4 की, ये हम एक्चुअल इंटरफेस में देखेंगे।
I would request everyone to just keep your cameras on and ask any questions in the chat box as well. It's a fun session, something new, something really important, which will take place in your Okay. journeys. Yeah. Can you see my screen? Yes, sure. ओके तो अभी ये जो डैशबोर्ड है एज यू कैन सी दिस इज यूनिवर्सल एनालिटिक्स ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का डेमो अकाउंट है और इसमें जो ये अभी जो व्यू है ये चेंज होने वाला है और यू कैन सी हियर आल्सो यूनिवर्सल एनालिटिक्स विल नो लॉन्गर प्रोसेस न्यू डेटा फ्रॉम जुलाई 2023 तो गूगल भी इस चीज को बंद कर रहा है यूनिवर्सल एनालिटिक्स को बंद कर रहा है फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जुलाई और नेक्स्ट ईयर जुलाई हमारे पास सिर्फ गूगल एनालिटिक्स 4 ही रहने वाला है तो गूगल ये रेकमेंड कर रहा है कि राइट नाउ यू कैन हैव बोथ द प्रॉपर्टीज दैट इज गूगल एनालिटिक्स यूनिवर्सल एनालिटिक्स एंड गूगल एनालिटिक्स 4 आल्सो सो अभी गूगल रेकमेंड कर रहा है कि ये ट्रांजिशन एब्रप्ट ना हो किसी भी बिजनेस के लिए क्योंकि डेटा लॉस भी हो सकता है अगर someday you wake up and see my analytics is not working so it's a nightmare so Google is recommending that you should have both the properties ये हम सेटिंग्स में जाके भी कर सकते हैं यहाँ पे अभी आई थिंक एडमिन एक्सेस का मेरे पास तो नहीं है लेकिन इन प्रॉपर्टी सेटिंग्स वी कैन क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी फॉर फॉर गूगल एनालिटिक्स 4 Right. yeah here GA4 setup assistance we can set up another property for universal analytics so let's go in universal analytics now in Google Analytics 4 and let's see what's new in there so as I said the entire interface is totally new जो हमें जो पहले रियल टाइम रिपोर्ट्स दिखते थे जब मैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स पे अगर मैं लैंड हो रहा हूं तो पहले दिखता था कि एक रिपोर्ट ओवरव्यू आता था और उसमें मुझे पहले रियल टाइम रिपोर्ट दिखता था कि लास्ट 5 मिनट्स की जो एक्टिविटी हुई है उसमें से कितने लोगों ने लॉग इन किया कितने लोगों ने इवेंट्स कंप्लीट किए गोल्स कंप्लीट किए एटसेट्रा ये डेटा मुझे दिख जाता था अब मुझे अगर वो डेटा देखना है तो मुझे जाना पड़ता है रिपोर्ट्स पे so I'll go in reports and here in real time report I can see the data of people right now who are right now on my website now you must have noticed the difference यहाँ पे जो रियल टाइम डेटा का जो टाइम स्पैन है वो GA4 में इम्प्रूव हुआ है विच इज अबाउट 30 मिनट्स सो पिछले आधे घंटे में जो कोई भी मेरे वेबसाइट पे एक्टिविटी हुई है यहाँ पे वो दिख जाती है सो दीज 39 यूजर्स हैव विजिटेड माय वेबसाइट इन लास्ट 30 मिनट्स यहाँ पे ये जो रिपोर्ट्स है वो भी एक नाउ दे आर कॉलिंग इट एज अ लाइफ साइकिल क्योंकि ये कस्टमर की जो एंटायर जर्नी है वो जर्नी अब हम GA4 में देख सकते हैं हाउ डिड वी एक्वायर आवर कस्टमर इन एक्विजिशन what exactly did he do on our website that is behavior or engagement and monetization is whether he converted whether he made any purchase or submitted lead form etc so all these things we can see, check in acquisition engagement and monetization ये जो रिपोर्ट्स है एक्विजिशन एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन प्रीवियसली यूनिवर्सल एनालिटिक्स में हमें ये कॉन्फ़िगर करने पड़ते थे फॉर एग्जांपल मोनेटाइजेशन अगर मुझे करना है तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में मुझे ई-कॉम का जो ई-कॉमर्स का एक सेपरेट सेटिंग रहता है वो मुझे ऑन करके तभी मैं मेरा जो मोनेटाइजेशन का डेटा है वो मैं ट्रैक कर सकता था लेकिन अब GA4 में हम डायरेक्टली कर सकते हैं देन देयर इज न्यू टैब कॉल्ड एक्सप्लोर और ये हमारा जो गूगल डेटा स्टूडियो है जिसमें हम विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं ये वी कैन कॉल इट एज अ मिनी डेटा स्टूडियो क्योंकि यहाँ पे हम एक्सप्लोरेशंस कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड फनल्स क्रिएट करके हम एनालिसिस भी कर सकते हैं यहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए सेपरेट सेक्शन है जिसमें हम गूगल एड्स का डेटा भी देख सकते हैं नॉट ओनली गूगल एड्स any ad platform we can integrate it with GA4 for example maybe Facebook or Twitter ads also and check the data here and lastly we have a configuration setting so previously मुझे जो for example if I want to create an event in universal analytics तो मुझे वो टैग मैनेजर के थ्रू ही करना पड़ता था क्योंकि एक इवेंट का जो टैग है वो मुझे टैग मैनेजर में जाके वहां पे सेटअप करके
फिर से if analytics is connected, then I was able to see the data in my universal analytics. यहाँ पे हम directly analytics में ही event create कर सकते हैं. तो ये एक एडवांटेज है. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे डीबग व्यू भी है. मतलब जो गूगल टैग मैनेजर का जो बेसिक एक्टिविटी के लिए हमें टू एंड फ्रो करना पड़ता था कि मुझे गूगल टैग मैनेजर में जाओ, वहां पे इवेंट सेटअप करो, फिर गूगल टैग मैनेजर का डीबग व्यू ऑन करके चेक करो कि इफ द इवेंट इज प्रॉपर्ली हैपनिंग और प्रॉपर्ली सेटअप और नॉट. तो ये सब चीजें हम यहाँ डीबग मोड में ही कर सकते हैं. मुझे ऑल आई हैव टू डू इज go in Google Tag Manager and turn on the setup debug mode, and यहाँ पे मैं पूरी वेबसाइट debug कर सकता हूँ. So this is what new about Google Analytics 4. So are there any questions about GA4? There is. Please go on. I mean, Google lets you. Go ahead. If you have any queries, go ahead. Go ahead. Google lets you, add both the properties in the website. For example, universal analytics भी हो गया, GA4 भी हो गया. तो is there any confusion for Google itself? क्योंकि दोनों जगह जा रहा है data. So हाँ, गुड क्वेश्चन. एक्चुअली कैसा है कि जब हम यूनिवर्सल एनालिटिक्स का सेटअप करते हैं तो हमें एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट ट्रैकिंग कोड मिल जाता है. सेम थिंग विल हैपन विद J4 आल्सो. तो अगर मेरे पास यूनिवर्सल एनालिटिक्स ऑलरेडी है और अगर मैं सेम वेबसाइट पे अगर J4 सेटअप कर रहा हूँ तो उसका ट्रैकिंग कोड ही अलग है. इसलिए it won't be confusing for us and for Google also that if data is going to Universal Analytics or GA4 because दोनों का ट्रैकिंग कोड ही अलग है. Right. And I think the best way to visualize data is getting into Google Studio, Data Studio. Yes, it getting into Data Studio क्योंकि अभी भी ये जो Google Analytics 4 है it's still in the development stage. तो इट्स बेटर कि हम गूगल एनालिटिक्स 4 और डेटा स्टूडियो कनेक्ट करके वहां पे देखे डेटा देख सकते हैं. Yes. Go ahead. I guess there is one question coming up. Meet is asking how to determine targets. Yeah, that has been answered. So. Okay, fine. Okay. What else? Go ahead. Please type your queries if you have, because Google Ad is very important skill set. And yes, Google Analytics is can be confusing sometimes. In what sense? Can be confusing while finding the audience. There are so many things actually in Google Analytics, so it can be confusing for someone who's just starting off. Okay. I would suggest start with a measurement plan. हमें measure क्या करना है ये decide करो पहले, क्योंकि Google and as you said, obviously Google Analytics में और नॉट ओनली इन यूनिवर्सल एनालिटिक्स 4 में भी इतने सारे रिपोर्ट्स हमें मिल जाते हैं कि एग्जैक्टली हमें देखना क्या है ये हमें खुद ही डिसाइड करना है. पहले जब बिफोर इंस्टॉलिंग गूगल एनालिटिक्स वी शुड प्रिपेयर अ मेजरमेंट प्लान. मुझे एग्जैक्टली मेजर क्या करना है मेरे वेबसाइट पे. कन्वर्जन मेजर करने हैं, वेबसाइट विजिट मेजर करनी है, और उसके हिसाब से ऑब्वियसली ये सब डेटा हमें रेडीमेड मिल जाएगा एनालिटिक्स पे. लेकिन जब हम नॉट ओनली एनालिटिक्स जब हम विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं डेटा स्टूडियो में तो वहां पे ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एग्जैक्टली हमें किस चीज का विजुअलाइजेशन क्रिएट करना है, क्योंकि अगेन विजुअलाइजेशन हम पूरा डेटा लेके भी क्रिएट कर सकते हैं. Very true. And it's huge in demand. Google Ads is very strategic. You rightly said, Shriyok. Yes. Because a lot of business owners, they pump in money because the money is in optimization, which is important. Actually, yes. Because clients don't mind spending 100,000 euros also per year. 100,000, or maybe there are some clients who might spend 1 million euros also, but they also want that kind of conversion on their website. So it again boils down to optimization. Yes, and if ROI positive, everyone will put money into Google Ads. But at the same time, what I've realized is Google Ads can make a good campaign, a better campaign, lot of AI, lot of things.
is happening within the Google Ads platform, Yes, but it's yes. very difficult for making, very bad campaign. You cannot expect Google AI or ML to make it better. No, So, no, no. Yes. So You cannot, क्योंकि अगर हम पहली बार कैंपेन सेटअप कर रहे हैं तो गूगल के पास या गूगल एआई और मशीन लर्निंग के पास एनीवे मेरे स्पेसिफिक एड अकाउंट का कोई प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है, तो नहीं वो है, जो हाँ। कुछ भी एनालिसिस करेगा या फिर जो एआई रिकमेंडेशन देगा वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहेगा. फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग इन फूड इंडस्ट्री और मेरा होटल है, फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है और मेरे रेस्टोरेंट के लिए मैं पहली बार ही गूगल एड्स रन कर रहा हूँ, तो जो कुछ भी एआई और एमएल के रिकमेंडेशंस आएंगे वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक रहेंगे, ओवरऑल फूड इंडस्ट्री के रिलेटेड या रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के रिलेटेड रहेंगे. हाँ. लेकिन वंस आई स्टार्ट रनिंग एड्स और मेरे जो कैंपेन में कन्वर्जन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं या इंप्रेशंस दिख रहे हैं, तो वो जो डेटा आएगा वो स्पेसिफिकली मेरे एड का ही या मेरे गूगल एड्स अकाउंट का ही रहेगा. Right, Let's right, move. right. Let's move further. Yes. ओके, सो नाउ हमने ये देख लिया कि यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स 4 क्या है और उसका इंटरफेस कैसा है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स exactly changed in Universal Analytics and Google Analytics 4. And by the way, Google Analytics 4 is not an upgrade of Universal Analytics. Let me tell you, it's totally different platform. Okay. So ऐसा नहीं है कि मुझे Universal Analytics अभी मेरे पास है. I know certain things about Universal Analytics, so it's just an upgrade. No, it's totally different, and you have to learn it from ground because as you can see, interface भी अलग है, उसका डेटा कलेक्शन का लॉजिक भी अलग है. वहाँ पे प्राइवेसी सेटिंग्स भी अलग है उसमें. जैसे कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स में फॉर एग्जांपल मुझे यूजर स्पेसिफिक डेटा दिख जाता है. मुझे अगर मैं यूजर आईडी फंक्शन ऑन कर देता हूँ यूनिवर्सल एनालिटिक्स का, तो मुझे स्पेसिफिक यूजर आईडी तक का लेवल का डेटा दिख जाता है कि जैसे कि नमन का अगर फॉर एग्जांपल यूजर आईडी 123 है, श्रीयोग का 1234 है, तो 1234 आई कैन रिकॉग्नाइज एज 1234 is Shriyo, 123 is Naman. So ये जो है मतलब ये ज्यादा ये प्राइवेसी काइंड ऑफ इंट्रूडिंग है, ये सिक्योर नहीं है. तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में पहले ये पॉसिबल था, गूगल एनालिटिक्स 4 में ये अभी कर सकते हैं ऑन यूजर लेवल, लेकिन वो फीचर हम क्लोज करके ऑन डिवाइस लेवल भी कर सकते हैं. तो ये टोटली डिफरेंट है. There's a question from Namish. He says that Google. So he says that Universal Analytics will stop from July 2023. So should we learn this? Yes. Or Google Analytics 4? Okay, good question again. I would say you should learn both because right now till July 2023 Universal Analytics is going to be there, और यूनिवर्सल उसके बाद जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डेटा है इट विल वर्क एज अ बेंचमार्क. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई नई वेबसाइट है जिसपे मैंने यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रीवियसली इंस्टॉल करके रखा है और वहां पे मेरे कुछ इवेंट्स हो रहे हैं, गोल्स हो रहे हैं, तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स के थ्रू जो भी डेटा आ रहा है वो मैं एज अ चेकिंग पॉइंट, एज अ बेंचमार्क यूज कर सकता हूँ व्हाइल सेटिंग अप माय गूगल एनालिटिक्स 4 अकाउंट. तो अगर यहाँ पे मैंने कुछ 5-6 गोल सेट करके रखे हैं, अगर सेम डेटा फॉर दोस गोल्स एंड कन्वर्जेंस इफ आई एम सीइंग इन गूगल एनालिटिक्स 4 आल्सो, तो मेरा सेटअप करेक्ट है. तो ये एज अ बेंचमार्क यूज कर सकते हैं कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स का डेटा और गूगल एनालिटिक्स का डेटा कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि प्रॉपर सेटिंग हुआ है या नहीं. तो उसके लिए हमें यूनिवर्सल एनालिटिक्स भी का भी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और GA4 का भी होना चाहिए. So let's move forward. So first difference is sessions versus events. As I said, डेटा कलेक्शन का लॉजिक अलग है. यूनिवर्सल एनालिटिक्स में हमें हिट लेवल डेटा दिखता था, यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स 4 में इवेंट लेवल डेटा दिखता है. देन वन प्रॉपर्टी वर्सेस सेपरेट प्रॉपर्टीज. सो इन यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जब हम फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेबसाइट है और मोबाइल ऐप भी है, तो वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म थे. पहले जो वेबसाइट का जो प्लेटफॉर्म है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल एनालिटिक्स, और जो मोबाइल ऐप के लिए प्लेटफॉर्म है उसे बोलते हैं फायरबेस. तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स अलग अलग थे जिनमें मुझे डेटा
ऐप का डेटा मुझे फायरबेस में कलेक्ट करना पड़ता था और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में मेरा वेबसाइट का डेटा कलेक्ट होता था। अगर कोई यूजर मेरे ऐप के थ्रू अगर मेरे वेबसाइट पे आता है तो आई हैव टू जगल बिटवीन दीज टू प्लेटफॉर्म्स, लाइक फायरबेस का डेटा ले लो और यूनिवर्सल एनालिटिक्स में चेक करो क्योंकि ये सेम यूजर ऐप के थ्रू मेरे वेबसाइट पे आया है। तो ये जगलिंग बंद करने के लिए गूगल एनालिटिक्स 4 ने क्या किया है कि once you set up one property, it will be for your website and mobile app also. तो जो भी डेटा है, whether the user lands on your website through a mobile app or directly lands on your website, you can track in Google Analytics 4. तो दो सेपरेट प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है। Google Analytics 4 में एक ही प्रॉपर्टी बनेगी जिसमें हम वेबसाइट का भी डेटा ट्रैक कर सकते हैं और ऐप का भी डेटा ट्रैक कर सकते हैं। Then custom reports versus pre-made reports. In यूनिवर्सल एनालिटिक्स वी हैड सम प्री मेड रिपोर्ट्स, सेशन लेवल डेटा हमें दिख जाता था, जैसे कि मैंने एक्सप्लोर टैब भी दिखाया। एक्सप्लोर टैब में हमें कस्टम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स 4 के कस्टम रिपोर्ट्स हम उस टैब में बना सकते हैं, लेकिन ये एक्सप्लोरेशन का जो फीचर है ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स में प्रीवियसली अवेलेबल नहीं था। Then limited analysis opportunity versus custom analysis opportunity. So in universal analytics में जो कुछ भी प्रीमेड रिपोर्ट्स अवेलेबल थे उसी से हमें कुछ तो एनालिसिस करना पड़ता था, लेकिन कस्टम एनालिसिस की लेकिन गूगल एनालिटिक्स 4 में कस्टम एनालिसिस की पॉसिबिलिटी भी है, जहाँ पे हम एज आई सेड इन एक्सप्लोर टैब हम फनल एक्सप्लोरेशन बना सकते हैं या पाथ एक्सप्लोरेशन बना सकते हैं और उसके थ्रू हम हमारा खुद का भी एनालिसिस कर सकते हैं। ये फीचर यूनिवर्सल एनालिटिक्स में फनल और पाथ एक्सप्लोरेशन अवेलेबल थे, लेकिन उसमें हमें जो कस्टमाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं था। सो यूनिवर्सल एनालिटिक्स विल स्टॉप रिपोर्टिंग डेटा एंड गूगल विल पुश फॉरवर्ड गूगल एनालिटिक्स 4, हमने देख ही लिया है। तो उसका रीजन क्या है, व्हाई? द रीजन इज ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस। तो as in India it's not a big deal right now, global data protection, because ये जो ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन है ये स्पेसिफिकली फॉर यूरोप है। प्रॉब्लम ये होता था कि पहले जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स में जो डेटा जाता था वो अमेरिकन सर्वर्स में जाता था गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स के, तो यूरोपियन डेटा अमेरिका में जा रहा है, तो इट्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा ब्रीच। दैट्स व्हाई यूरोपियन कंट्रीज ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे बोलते हैं GDPR, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स, टाइट रूल्स बनाए कि फॉर एग्जांपल मेरा डेटा जो अगर मैं यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करता हूँ या फिर मैं इवन आई डोंट बिलोंग टू यूरोपियन कंट्री बट आई स्टिल लिविंग इन वन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, लाइक आई एम राइट नाउ लिविंग इन जर्मनी बट आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इसका भी डेटा इट विल कंसीडर एज अ यूरोपियन डेटा और वो यूरोप से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए ये जो डेटा प्रोटेक्शन का जो रेगुलेशंस है वो बहुत टाइट हो रहे हैं नाउ डेज। यहाँ पे अब मुझे अगर एनालिटिक्स का डेटा मैं कंसेंट दे सकता हूँ कि मेरा डेटा गूगल एनालिटिक्स के पास नहीं जाना चाहिए, तो ये यूजर के पास, यूजर लेवल तक ये कंसेंट आ चुका है कि मी एज ए यूजर डिसाइड कर सकता हूँ कि मेरा डेटा एनालिटिक्स के पास जाना चाहिए या नहीं। तो ये जो टाइटर रेगुलेशंस है उसको टैकल करने के लिए यूनिवर्सल एनालिटिक्स अब बंद हो रहा है और गूगल एनालिटिक्स 4 पे हम शिफ्ट होने वाले हैं। This is the reason why Google is also pushing forward Google Analytics 4. So, any questions? I had a question. Yeah. For example, if I'm making a new website altogether from the scratch. Sorry, can you repeat? If I'm making a new website all the way from the beginning, right? Mm-hmm. And shall I add Universal Analytics also, or direct I should shift to GA4? Then if you're working with a brand new website, then I would suggest go with Google Analytics 4, because anyways it's going to get down next year, so that doesn't make sense to have some data on Universal Analytics. Yes. So start with Google Analytics 4. Also, so there are multiple properties. So Google Ads का अलग से property बनेगा and website का अलग से property बनेगा, right? In Google Analytics. नहीं, property अलग से नहीं बनेगा, Google Ads का data stream बनेगा. हाँ, data stream, okay. Yes. So there will be any other property. हाँ, नहीं, ये जो data है, as I said,
जस्ट लेट मी शो यू जो जो गूगल एड्स का डेटा है वो कहाँ पे एग्जैक्टली दिखता है, तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा. So can you see the screen now? Yes, yes. So I'll go in the Universal Analytics because I know it's in development stage. So anyways, तो अगर मैं यहाँ पे एक्विजिशन रिपोर्ट में जाता हूँ तो यहाँ पे गूगल एड्स का सेक्शन है ये. ओके ओके. तो यहाँ पे मुझे डेटा दिख रहा है. सो ये नई प्रॉपर्टी नहीं क्रिएट हुई है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कुछ भी मेरे लैंडिंग पेज रहेंगे जो स्पेसिफिकली विच आर स्पेसिफिकली फॉर गूगल एड्स, अगर मैं लैंडिंग पेज पे अगर मेरा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रहा हूँ तो वो एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली मेरे जो वेबसाइट का डोमेन है उसी पे होस्ट होगी. राइट. सो ऑलरेडी उस डोमेन पे सिंस गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो आई डोंट हैव टू क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी जस्ट फॉर गूगल एड्स. तो ये गूगल एड्स का डेटा मुझे यहाँ पे दिख जाएगा. Alright. If there's any question, please drop it in the chat. Okay. So should we move further then? Yes. Let us. Okay. Just a minute. So now in the end we'll discuss about the future of digital marketing. So just while yes, क्या लगता है future क्या होगा digital marketing का? What kind of things you might see in future? Let's say in 2030, for example. I guess there's a lot of Web 3.0 gonna go, based on everything on blockchain. So that's something that's appearing right now. Yes. That's one of the few things, I guess, and the future is amazing. That's why we are in this field. Yeah. Actually, it is. Yeah. What else? Technologically क्या हो सकता है? मतलब sorry, technologically नहीं, approach क्या रह सकता है? See, Google always tries to make it better and better. So I will just say it will be better. But yeah, I guess decentralization of the data would help a lot. That's what Web 3 is all based upon. So blockchain is decentralization, right? And decentralization, the data being just with Google is also a thing. So it GDPR जैसे हो गया एक. So decentralization जैसे होगा, will it deteriorate Google's strength over internet marketing? It will not, because अभी जैसे मैंने गूगल एनालिटिक्स 4 के बारे में बोला, यूनिवर्सल एनालिटिक्स में हम यूजर लेवल का डेटा दिखता है. तो यूजर लेवल का डेटा दिख रहा था, इसलिए जीडीपीआर ने उनको मतलब काइंड ऑफ हैमर किया कि नहीं, ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स हमें सिक्योर नहीं लग रहा. सो ईदर यू शुड शट इट डाउन और कम विद सम अल्टरनेटिव. तो वो विद अल्टरनेटिव आ गए GA4. अब GA4 में क्या होता है कि हमें यूजर लेवल का डेटा नहीं दिखता, लेकिन हमें कोहोर्ट लेवल का डेटा दिखता है. फॉर एग्जांपल हमें एज ग्रुप लेवल का डेटा दिखेगा, हमें पर्टिकुलर पर्सन का नहीं दिखेगा कि 18 to 24 ये जो एज ग्रुप है, ये जो कोहोर्ट है, उसके रिलेटेड डेटा हमें दिखेगा. तो ये अगेन थोड़ा सा जूम आउट होके हमें डेटा दिखने वाला है, बट स्टिल इट्स यूजफुल कि हम उस पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर सकते हैं कि ओके 18 to 24 का जो एज ग्रुप है वो who might purchase my product, so I will advertise to that age group. तो पर्टिकुलर यूजर पे टारगेट नहीं होगा. ये रीमार्केटिंग थोड़ा हैम्पर हो सकता है, क्योंकि रीमार्केटिंग अगेन वर्क्स ऑन काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशन. सो अगर मैं किसी वेबसाइट पे लैंड हो रहा हूँ और वहां पे अगर रीमार्केटिंग टैग है ऑलरेडी, तो मुझे दूसरी सभी जगह पे वो एड्स दिखना शुरू हो जाता है. तो ये जो है, ये अगेन रीमार्केटिंग इट विल नॉट हैम्पर, बिकॉज अगेन सेम, अगर ग्रुप ऑफ पीपल इज लैंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर वेबसाइट, जैसे कि अमेजोन पे अगर 100 लोग लैंड हो रहे हैं, तो 100 लोगों का एक ग्रुप बनेगा और उस ग्रुप को सिमिलर एडवर्टीजमेंट दिखेंगे. सो अगेन it will be a bit difficult, but Google has a kind of a trick
has a knack to come up with some way. I mean, it is a company with magicians altogether. Yes, actually. So Yash Thakur Uh, has commented that the growth of the Indian e-commerce market is pushing to 7 trillion rupees by 2023. That's a Wow. huge amount. That's huge. Actually, yes. 7 And trillion I is- think that's why Amazon wants to have a share of it, and Amazon Reliance war is going on right now. Tata is also coming in with the e-commerce. Sorry, Tata is also Tata. Tata is also, yeah, with Ajio. Yeah, Ajio, and there's something called as Tata Click. It's gonna be just Tata Click. Yes. just like Amazon in few coming days. Yes. Okay. So let's move forward. So future of digital marketing. First, it is going to be user focused and privacy protected analysis. So as I mentioned, due to some GDPR regulations, it's right now happening in Europe, but definitely if it's happening in Europe, later on it will be happening all over the world. So user focused and privacy protected, there will be user focused and privacy protected analysis. So you can opt out of using Google Analytics also. So अगर मेरा डेटा, मैं अगर चाहूँ कि मेरा डेटा Google Analytics पे नहीं जाना चाहिए, मेरा डेटा एनालिसिस के लिए यूज नहीं होना चाहिए, तो वो भी मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे आई विल स्टिक टू ओनली functional cookies. That is, functional cookies means the cookies which are essential just to run a particular application. तो अगर मैं वेबसाइट पे, किसी वेबसाइट पे लैंड हो रहा हूँ, तो मेरा पर्सनल डेटा कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, जस्ट द जो मेरा डिवाइस आईडी है वही रजिस्टर होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम वेबसाइट में अगर लैंड हो रहा हूँ, तो ऑब्वियसली वेबसाइट लोडिंग के लिए जो टाइम लगेगा वो कम रहेगा, इसलिए वो डेटा सिर्फ वहां पे स्टोर रह सकता है. Apart from that, any other data will not be stored. So user focused and privacy protected analysis. Then dominance of AI and machine learning. Google Analytics 4 का बेस ही machine learning है. Not only Google Analytics 4, right now in Google Ads also, once you set up a campaign, you start getting, जैसे सौरभ सर ने कहा कि you start getting AI and machine learning suggested improvements in your ad campaign. तो ये भी इसका भी डोमिनेंस रहने वाला है AI और मशीन लर्निंग का. देन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस. तो प्रीवियसली पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस का मतलब था कि अगर मैं किसी वेबसाइट पे लैंड हो रहा हूँ, तो वो रीमार्केटिंग के थ्रू मुझे एड्स का बम्बार्डमेंट करते थे, लेकिन अब ये प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगा और मुझे एड्स का बम्बार्डमेंट नहीं होगा. लेकिन by using AI and machine learning, for example, मैं अगर Amazon पे जा रहा हूँ, Amazon पे मैं शूज खरीद रहा हूँ, तो मुझे recommendations मिलेंगे based on my previous purchase. मैंने जो साइज बाय किया था या फिर मैंने जो ब्रांड बाय किया था, नाइकी, एडिडास, जो कोई भी है, तो उसी से रिलेटेड सजेशंस मुझे पर्सनलाइज रिकमेंडेशन में मिलेंगे. सो दिस इज पर्सनलाइज एक्सपीरियंस. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एवरीथिंग विल बी ऑन मेटावर्स. सो हैव यू हर्ड ऑफ मेटावर्स? यू मस्ट हैव. Definitely, yeah. Yeah. So just imagine मैं अगर नई कार परचेस करने वाला हूँ, then I will be able to I don't have to go to the car dealer just to have a test drive. I can have test drive in VR also. So this is how the future is going to be. So clearly there is a huge opportunity in digital marketing. Let's grab it. Thank you. It was a beautiful session, man. Again, let's like always, Saurabh sir always says, let's dream big and let's take action, and that's what we are here for. And your insights were amazing, man. I'll definitely hit you personally as well. If there's any question, please drop that in the chat, or if you think of question later on, just tweet us, or ask us on LinkedIn or ask us on Instagram, wherever you want. Is there anything that you would like to say, Shriyo, and then followed by Saurabh sir? You've been muted, man.
So thanks a lot, Shriyog. It was an amazing, session. And sharing is caring, which is important. Yes, it is. And I enjoyed also like sharing my experiences, whatever I have seen so far while working with PwC for last couple of months, whatever I have learned and I have seen through projects maybe or through training sessions, etc. That's I just shared. So it's not, I wouldn't say again, it's not my expertise, just experience. Nice. That's just you being humble. So can you just quickly in a few seconds, go ahead and tell your brand with the journey. How did you, think of going for digital marketing, So as I mentioned, I was working as a consultant, digital marketing consultant, and previously I had learned a little bit about search engine optimization or email marketing, etc., through some YouTube videos or through online sessions or some documentations. But that was not enough. I felt like I can learn something new, learn something extra, and deliver better to my clients. That is why I joined Brand Veda, and rest is history. Nice. Next careers, I also joined. You're doing an amazing job, Shriyog, and we wish you all the best. Thank you so much. और आने वाले समय में, you will do wonders. Probably down the line, 5 years, you will be top, PPC specialist, consultant. Look forward to it. That's going to happen. And, a lot of takeaways from this session. Yes. So from me and my team, I know, finding time, talking and sharing content is not that easy. We really appreciate. And thank you for spending your valuable time, because I know that, joining such kind of session, it gives a lot of idea. Actually, yes. And मैंने भी previously Brand Veda के through ऐसे sessions attend किए हैं. So it's honor कि मुझे this time I got an opportunity to be the host. Nice. We got amazing, even more guests coming in for sharing their knowledges. So let's just stay tuned. I'll send you all once again the link. And, Yes. And please do join. Yes. Fine, sure. So when you are coming back to India? Probably December this year. Probably. I haven't, मतलब मैंने decide नहीं हुआ है अभी. Probably December, क्योंकि December में यहाँ पे mostly vacation रहता है, तो मेरे जो बचे हुए vacations है या leaves है वो couple करके मैं इंडिया आ सकता हूँ. बिल्कुल आप आइए, पूरा कोशिश करेंगे आपसे मिलने का. जरूर. तो अहमदाबाद जरूर आइएगा. Probably we'll meet anytime. We'll surely meet. Yes, definitely. I give my regards to your family. Thank you so much. Thank you so much. Fine, so we'll end this session. Yes. Yeah, thank you.